السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب ایک گنہگار دل سے توبہ کرتا ہے تو عرش کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت کے دریا کھول دیتا ہے۔ کسی اندھیری رات میں گرتے آنسو اللہ کے قریب لانے کا راستہ بن جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے اس شرمندگی کو عزت میں بدل دیتا ہے۔ ایک سچی توبہ سے پرانی کتابیں صاف کر دی جاتی ہیں۔ کئی بار گناہوں کا بوجھ ہمیں اللہ پاک کے بالکل قریب لے آتا ہے۔ جب زمین پر ایک بندہ رو کر توبہ کرتا ہے، آسمان اس لمحے پر فخر کرتا ہے۔ ایک گنہگار کا پھر سے سجدہ کرنا اللہ پاک کی رحمت کا سب سے خوبصورت منظر ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ پاک اسے اور زیادہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کسی کا ٹوٹ کر اللہ پاک سے معافی مانگنا اللہ پاک کی رحمت کا انتہائی عظیم سبب ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ پاک آسمانوں سے مدد نازل کرتا ہے۔ دنیا کے لوگ چھوڑ دیں، لیکن اللہ پاک کبھی اپنے گنہگار کو نہیں چھوڑتا۔ کسی کی چھپی توبہ بھی عرش کے فرشتوں کے ساتھ اللہ پاک کے حضور قبول ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی کمزوری کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، تب اللہ پاک اپنی رحمت کی کشتی بھیجتا ہے۔ ہر ایک گرتے قدموں کے ساتھ ایک نئی امید کا راستہ ہوتا ہے۔ جب ہم ڈریں کہ اللہ پاک ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو سمجھ لیجئے اللہ پاک کی رحمت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک سچی توبہ پرانے زخم کو پھول میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے عظیم شخص وہ ہے جو اپنے گناہوں پر روئے اور اسے چھوڑ دے۔ توبہ کرنا صرف ایک معافی نہیں، ایک نئی زندگی کی چابی ہے۔ ہر دل جس میں ندامت ہوتی ہے، اللہ پاک کے قرب میں جگہ پاتا ہے۔ کسی کا آخری وقت تک اللہ پاک سے امید رکھنا سب سے عظیم توبہ ہے۔ جب تک روح جسم میں ہے، اللہ پاک کے دروازے کھلے ہیں۔ ایک وقت کا روحانی پچھتاوا ساری زندگی کو نئی راہ دے سکتا ہے۔ ہر گناہ کے بعد ایک موقع دیا جاتا ہے تاکہ ہم واپس آ سکیں۔ کسی کی اندھیروں سے بھری زندگی میں توبہ کا ایک چھوٹا سا چراغ سب کچھ روشن کر سکتا ہے۔ جب ایک گنہگار انسان سجدے میں روتا ہے تو آسمان کے سب فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ایک اصلی توبہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، وہ آنسو رحمت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے لیے چھوڑ دیا گیا ہر برا عمل ایک نئی برکت لاتا ہے۔ جب دل سے توبہ کی جاتی ہے تو اللہ پاک پچھلے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے کبھی ہوئے بھی نہ تھے۔ جب زبان لفظ نہیں ڈھونڈ پاتی، اللہ پاک پھر بھی دل کے حال کو سمجھ لیتا ہے۔ ہر دل جو اللہ پاک سے گفتگو کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ جب ہم آنسوؤں کے بیچ اللہ پاک کو پکارتے ہیں تو وہ رحمتوں کا دریا کھول دیتا ہے۔ جب ہم اللہ پاک سے اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنی قدرت سے مضبوط کرتا ہے۔ ہر دعا چاہے دبے لفظوں میں ہو یا چیخ چیخ کر اللہ پاک کے عرش تک ضرور پہنچتی ہے۔ جب ہم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے اس سے بہتر لکھتا ہے۔ دل سے نکلی ایک چھوٹی سی دعا تقدیر کا رنگ بدل سکتی ہے۔ جب دعا اور صبر ایک ساتھ ہو جائے تو معجزے ضرور ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ پاک کے حضور اپنی دعاؤں میں روتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے قرب کو محسوس کراتا ہے۔ دعا وہ راستہ ہے جس میں انسان سے اللہ پاک کا فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں، دعا ہمیں پھر سے اٹھاتی ہے۔ جب دعا کا جواب دیر سے ملتا ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک کچھ بہترین تیار کر رہا ہے۔ ہر وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تو دعا نیا راستہ بن جاتی ہے۔ دعا وہ زنجیر ہے جو انسان کو اللہ پاک سے باندھ کر رکھتی ہے۔ کسی اور کے لیے چھپ کر کی گئی دعا اپنے لیے رحمتیں لے آتی ہے۔
जब दुआ नफरत के बजाय मोहब्बत से भरी हूँ तो अल्लाह पाक जल्दी जवाब देता है। जब एक माँ अपने बच्चों के लिए रात के आखिरी हिस्से में दुआ करती है तो वो दुआ सीधे अर्श तक जाती है। हर वो दुआ जो आपके दिल को हल्का करती है वो अल्लाह पाक की रहमत का पैगाम है। जब हम खुद के लिए दुआ करते करते रो पड़ती हैं तो अल्लाह पाक खुद हमें चुप कराता है। हर मुसीबत के नीचे एक छुपी दुआ होती है जो सब्र के साथ रहमत में तब्दील हो जाती है। जब हम किसी गुमशुदा रास्ते में अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं तो वो रोशनी के चिराग जला देता है। हर दुआ में एक नया इरादा छुपा होता है जो इंसान को रूह से ताकत देता है। जब किसी के दिल से अपने लिए नहीं दूसरों के लिए दुआ निकलती है तो अल्लाह पाक दोनों की मुश्किलें आसान कर देता है। जब हम अल्लाह पाक से वो चीजें मांगते हैं जो दुनिया के लोग देने से इनकार करते हैं तो अल्लाह पाक इनायत में नई दुनिया दे देता है। दुआओं का सिलसिला इंसान को अल्लाह पाक के दरवाजे तक ले जाता है। जब आप किसी बीमार के लिए दिल से दुआ करती हैं तो अल्लाह पाक आपके दिल को शिफा देता है। हर दुआ में एक रहमत छुपी होती है जो वक्त पर अपना असर दिखाती है। हर रात की दुआ कल का रोशन सवेरा बन सकती है। जब हम अपनी सारी उम्मीदें अल्लाह पाक पर छोड़ देती हैं तो दुआ की ताकत कमाल कर देती है। जब मुसीबत में सब रास्ते बंद लगते हैं वही वक्त अल्लाह पाक की रहमत के लिए नए रास्ते खोलने का होता है। जब दिल का बोझ सहना मुश्किल हो जाए तो समझ जाओ अल्लाह पाक तुम्हारा सबसे बड़ा मददगार है। कई मुसीबतें सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि हम अल्लाह पाक की रहमत का असल मजा ले सकें। जब सब लोग छोड़ देते हैं तब अल्लाह पाक अपने करीब बुलाता है। जब हम अपने दुखों को अल्लाह पाक के हवाले कर देते हैं तो वो उन्हें बरकत में तब्दील कर देता है। हर एक तूफान के बाद सुकून का एक नया जहां होता है जो अल्लाह पाक की रहमत का पैगाम लाता है। जब सब कुछ खो जाता है तभी इंसान अल्लाह पाक को पूरे दिल से पाता है। मुसीबत का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि वो इंसान को अल्लाह पाक के इतने करीब कर देती है जितना खुशी कभी नहीं कर सकती। जब हम मुसीबत में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अल्लाह पाक के नजदीक सबसे अजीम बंदों में शामिल होते हैं। अल्लाह पाक कभी भी एक भी आंसू बेकार नहीं जाने देता। हर आंसू का सबाब है। जब वक्त का दर्द हद से बढ़ जाए समझ लो कि अल्लाह पाक की रहमत बिल्कुल करीब है। हर दुख एक नई दुआ को जन्म देता है और हर दुआ एक नई रहमत लाती है। जब मुसीबत में सब कुछ खत्म लगता है अल्लाह पाक वहीं से नई कहानी शुरू करता है। जब तकलीफ में भी दिल अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है तो उस दिल में रहमत बरसने लगती है। अल्लाह पाक हर टूटी हुई चीज को नए अंदाज में बेहतरीन बनाता है। जब वक्त की तेज आंधियां इंसान को गिरा देती हैं अल्लाह पाक अपने हाथ से उठाता है। मुसीबत इंसान को सिर्फ थकाया नहीं करती बल्कि उसे अल्लाह पाक के साथ मजबूती से जोड़ने का जरिया होती है। हर तूफान के बाद एक नई जमीन मिलती है जहां अल्लाह पाक की रहमत फिर से सब कुछ सजा देती है। जब हम अपने दुख अल्लाह पाक के साथ शेयर करते हैं तो वो हर दर्द को रहमत में बदल देता है। जब दिल टूटता है तो अल्लाह पाक के कुर्ब के दरवाजे खुलते हैं। जब सब कुछ अंधेरा लगता है तो समझ जाओ कि अल्लाह पाक एक नई सुबह तैयार कर रहा है। जब हम सिर्फ अल्लाह पाक से मदद चाहते हैं तभी असली मदद मिलती है। जब इंसान के सब सहारे छूट जाते हैं तब अल्लाह पाक अपने हाथ आगे बढ़ाता है। जब इंसान कहता है मैं अकेला हूँ अल्लाह पाक जवाब देता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुसीबत से गुजरना एक ऐसी तिजारत है जिसमें अल्लाह पाक कभी नुकसान नहीं होने देता। हर सुबह का चमकता हुआ सूरज अल्लाह पाक की रहमत का एक खुला पैगाम होता है। हर नई सांस अल्लाह पाक के करम का एक नया तोहफा है। हर मुस्कुराहट, हर जीत, हर खुशी सब अल्लाह पाक की इनायत का सबूत है। जब कोई छोटा सा नेक अमल हमसे होता है अल्लाह पाक उसको अपनी बड़ी रहमत में तब्दील कर देता है। हर गिरी हुई पतंग भी अल्लाह पाक के हुक्म से नई उड़ान भरती है। जब इंसान सिर्फ अल्लाह पाक पर भरोसा करता है तो हर मैदान में फतह मिलती है। हर दिन जो हमें जिंदा करता है एक नई मोहब्बत का इजहार है अल्लाह पाक की तरफ से। जब हम बिना वजह हंसते हैं तो वो अल्लाह पाक की रहमत की एक छुपी हुई झलक होती है।
जब हम बिना मांगे कुछ पा लेते हैं तो समझ लो अल्लाह पाक ने बिना गिनती की रहमत अता की है। जब इंसान हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह पाक उसकी जिंदगी में रहमतें भर देता है। हर सही वक्त पर मिलने वाला रास्ता अल्लाह पाक की बेहतरीन प्लानिंग का नतीजा होता है। जब दोस्ती में अच्छाई और मोहब्बत मिलती है तो उसमें भी अल्लाह पाक का करम होता है। जब जिंदगी के फैसले हमें समझ ना आए, अल्लाह पाक की रहमत छुपकर काम कर रही होती है। हर अनजाना बचाव, हर छुपी हुई मदद अल्लाह पाक की निगाह का सबूत है। जब हम गिरने से बच जाते हैं, समझ लो एक फरिश्ता तुम्हें अल्लाह पाक के हुक्म से संभाल रहा है। हर वक्त जो दिल में उम्मीद जिंदा रखता है वो अल्लाह पाक की रहमत का असर है। हर टूटी उम्मीद के नीचे एक नए रास्ते का नक्शा होता है। जब हम थक जाते हैं और फिर भी उठकर चलते हैं, समझ लो अल्लाह पाक की ताकत तुम में काम कर रही है। हर छोटा नया दिन एक बड़े मोज़े का आगाज बन सकता है। जब दुनिया बेवजह हमसे मोहब्बत करती है, समझ जाओ अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों में रहमत डाली है। जब हम किसी और का बोझ हल्का करते हैं तो अल्लाह पाक हमारा बोझ सबसे ज्यादा हल्का कर देता है। जब वक्त के साथ सब कुछ बेहतर होता है, समझ जाओ कि अल्लाह पाक की रहमत पल पल काम कर रही है। हर ठंडी हवा, हर मीठी बारिश अल्लाह पाक की तरफ से प्यार भरा पैगाम है। जब हम जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह पाक बड़ी खुशियां भी अदा करता है। हर वक्त जो नफरत को पिघलाकर मोहब्बत में बदल देता है वो सिर्फ अल्लाह पाक की रहमत है। जब हम किसी का दिल खुशी से भर देते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए रहमत के दरिया खोल देता है। और जब जिंदगी के हर मोड़ पर आपको सुकून और मोहब्बत महसूस होती है, समझ जाओ कि अल्लाह पाक की रहमत ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। परेशान क्यों होते हो अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करके खुश है? तो क्या तुमने यह आयत नहीं पढ़ी, और तेरा रब भूलने वाला नहीं है? जिंदगी की जंग खुद अकेले ही लड़नी पड़ती है। अपने तो सिर्फ तमाशा देखने या जनाजा पढ़ने आते हैं। इंसान दोनों मामलात में बेबस है। दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स कभी अल्लाह पाक को तलाश नहीं कर सकता। अल्लाह पाक से मोहब्बत करो, वो आजमाइशें तो देता है मगर कभी आजमाइशों में तन्हा नहीं छोड़ता। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन लोग वो हैं जो अपने मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआओं का इंतजार कर रही हो। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। किसी नेकी को मामूली ना समझे, शायद वही आपकी मगफिरत का वसीला बन जाए। नेमत जब तक मेहनत करके हासिल ना हो, इंसान को उसकी कदर नहीं होती। जिंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वादा तो नहीं करते मगर बहुत कुछ निभा जाते हैं। इंसान दोनों मामलात में बेबस है। दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को खत्म कर देते हैं। एक बात पर ईमान रखे, जो इंसान हमारे हक में बेहतर ना हो, अल्लाह पाक उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। हर आजमाइश अल्लाह पाक का फैसला है और अल्लाह पाक का हर फैसला बेहतरीन होता है। जिंदगी में जब आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि जिंदगी की असर खत्म हो गई है। अपने अखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज्यादा ताखीर नहीं हुआ करती। जो इंसान यह समझता है कि अल्लाह पाक जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। ऐ मेरे अल्लाह पाक, मुझे हमेशा ऐसी इज्जत और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज करने से हासिल हो। कामयाबी का सफर नमाज और तिलावत कुरान के बिना अधूरा है। खुद को अक्लमंद समझना हर बेवकूफ का हक है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझने का हक किसी अक्लमंद को हासिल नहीं। जो अल्लाह पाक का हो जाता है फिर अल्लाह पाक उसे अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है और उसकी मदद वहां से करता है जहां पर किसी का गुमान भी नहीं होता। हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी अपनी जुबान की वजह से आती हैं। जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वादा तो नहीं करते मगर बहुत कुछ निभा जाते हैं।
दूसरों को खुश रखने और दिल में जगह बनाने के लिए अपनी बहुत सी आदतों और रवैयों की कुर्बानी देनी पड़ती है। औरतों को अमीरों से शादी का लालच और मर्दों को हुस्न का लालच ले डूबा। ध्यानदारी को सबने पीछे छोड़ दिया। नतीजा जलालत ही जलालत। जिनको गुर्बत की वजह से हम शादियों पर नहीं बुलाते, वो सबसे पहले हमारे जनाजे में शरीक होते हैं। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाक होते हुए भी खुश रहना दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह पाक के यहाँ जखीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी है। अगले सफा पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। जिंदगी में खुशियों का दारोमदार उस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तायुन करती है। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी परेशानियां कम होंगी। रब की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि रब ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बस सूरत हमारे रवैये और सोच होती है। किसी की जिंदगी में उसके लिए आसानियां पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर होता है। जिसको अपने अंदर झांकना आ जाए वो फिर दूसरों के एहसास समझने के काबिल हो जाता है। दिलों में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं, अच्छे अखलाक की जरूरत होती है। जो एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर बख्श देता है, सोचे अगर इंसान की मदद कर दी जाए तो अल्लाह पाक कितना नवाजेगा। इंसान को जब अल्लाह पाक से लेना होता है तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह पाक के नाम पर देना हो तो सिक्के ढूंढता है। मेरी बेबसी का आलम तेरे कुन का मुंतजिर है। मेरे मेहरबान दिखा दे फयाकुन का नजारा। बालदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। रोते रह जाओगे जिस दिन सजदे की ताकत नहीं होगी। अभी वक्त है नौजवानों, नमाज कायम करो। ज्यादती करने वालों की बर्बादी के लिए आपके आंसू और सब्र ही काफी हैं। जिस्म गंदा हो तो लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर दिल गंदा हो तो रब दूर हो जाता है। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों से ताल्लुक बढ़ाकर उनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है कि फासले में कितने अच्छे थे, कितनी इज्जत थी। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। धोखे होते रहते हैं, धोखे को जान का रोग नहीं बना लेना। दुनिया में आपका हकीकी मुकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। लाख इख्तलाफात के बावजूद कभी भी अपने घर के शेर को मत मारो, वरना इर्द गिर्द के कुत्ते तुम्हें नोच डालेंगे। हर इंसान के साथ चलना ना चलना वो आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें मुखलिस होकर चलें, मुनाफिकत ना करें। रुकावटें तो जिंदा इंसान के लिए हैं, मैयत के लिए तो हर कोई रास्ता छोड़ देता है। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कुरान कहता है और तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। अक्लमंद अपने काम पर और जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। अक्लमंद कमाल चाहता है और जाहिल माल चाहता है। हर दुख का मदावा हो सकता है, मगर आपकी जिंदगी के वो महीने और साल जो दूसरों को खुश करने में जाया हो गए, उनका अजाला नामुमकिन है। जब इंसान अपनी मर्जी को रब की मर्जी के सुपुर्द कर देता है तो फिर कोई गम नहीं रहता। अल्लाह पाक इंसान को 6 आजमाइशों से आजमाता है। नंबर 1, कभी अल्लाह पाक बीमार करता है ताकि हम अपने वजूद की बेहतर देखभाल शुरू कर दें। नंबर 2, कभी अल्लाह पाक हमें दुख और तकलीफ देता है ताकि हम मजबूत हो जाएं। नंबर 3, कभी अल्लाह पाक हमें नाकाम करता है ताकि हम आजाजी पैदा हो और हम मुतकब्बिर ना बने। नंबर 3, कभी अल्लाह पाक हमें गरीब कर देता है ताकि हम गरीब का दुख दर्द समझ सकें। नंबर 5, कभी अल्लाह पाक हमसे कोई चीज वापस ले लेता है ताकि हम अपने पास मौजूद चीजों की कदरों कीमत जानें। नंबर 6, कभी अल्लाह पाक हमें नुकसान पहुंचाता है ताकि हम अपनी गलतियों से सीख करें।
बड़े नुकसान से बच सकें। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के बस। जर्फ जर्फ की बात है, हम जिस एहसान फरामोश मुआसरे का हिस्सा हैं, वहाँ सोने की प्लेट में भी कुछ दिया जाए तो चमचा न होने का शिकवा जरूर होगा। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। उन लोगों को वजाहतें दे देकर अपने वक्त और सुकून को बर्बाद ना करो जो हमेशा आपको गलत समझने के लिए मसरूफ अमल करते हैं। यह जो माएँ होती हैं वो बहुत अनमोल होती हैं। यह ना हो तो बेटियां बेमोल हो जाती हैं। हमारे वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। किसी भी चीज के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हर बार किसी के खत्म होने पर अल्लाह पाक से शिकवा करने की बजाय उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमसे सिर्फ एक चीज वापस ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। मकान पक्का हो या कच्चा हो, जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ईमान पक्का ना हुआ तो कब्र की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अकेले रहने से या अकेला होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है, और जब रब मिलता है तो सब मिल जाता है। कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं, एक तो रास्ते की रुकावटों का पता लग जाता है, और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का पता चल जाता है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी कि अगले लम्हे बात करना भी नसीब ना हो। लिहाजा जिस हद तक और जैसे भी मुमकिन हो अल्लाह पाक के रास्ते पर चलते रहें। चल ना सके तो खुद को घसीटते रहें, भले हाँफते हाँफते वहीं जम जाएं, मगर अपने गुमान को अल्लाह पाक से नाउद ना होने दें, क्योंकि ईमान से बड़ी कोई शय नहीं। नमाज कभी ना छोड़ना, यह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की खोद कुरेद ना किया करो, और ना लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह अल्लाह पाक की मखलूक को तकलीफ पहुंचाना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत की निशानी में से एक निशानी यह भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। तुम्हारी रोती आंखों ने जो शिकवे किए हैं वो अल्लाह पाक ने सुनी हैं। जो इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता कि मैं अल्लाह पाक से मोहब्बत करता हूँ, वो इंसान झूठा है, क्योंकि रब्बुल आलमीन से डरने वाला कभी फजर नहीं छोड़ता। कि मैं अल्लाह पाक से डरता हूँ तो वो झूठा है, क्योंकि रब्बुल आलमीन से डरने वाला कभी फजर नहीं छोड़ता। मोमिन सिर्फ अपनी जात में नहीं जीता, एक तरफ वो अपने रब को राजी करता है और दूसरी तरफ बंदों की खैर ख्वाही करता है। अपना कीमती वक्त जाया ना करें, हर लम्हा हर उस चीज से फायदा उठाना सीखें जो आपके नाम आमाल को भारी कर दें। गलत काम गलत ही होता है, नियत अच्छी होने से कोई हराम या मकरूह काम जायज नहीं हो जाता। जमीन के ऊपर कोई भी अमल करने से पहले कुछ लम्हे के लिए सिर्फ एक बार कि हमारा यह अमल जमीन के नीचे सोचे कि हमारा यह अमल जमीन के नीचे हमारे लिए किस नतीजे का बायस होगा। जबानी में हर कदम फूक फूक कर रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि लिखें आप लेकिन आपका लिखा हुआ आपकी औलाद पढ़े। अपनी आने वाली औलाद के मुस्तकबिल की खातिर खुद को अल्लाह पाक की मदद से दुनिया के फितनों से बचाएं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहाँ अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। ताल्लुकात चाहे मुख्तसर ही रखें, लेकिन मुनाफिकत ना करें। बुरा वक्त बहुत सफाक आईना है जो बहुत सारे चेहरे बाज कर देता है, और अच्छा वक्त बादलों की तरह है जो सूरज की तैस तक को रोक देता है। गुलाब के उन पत्तियों की तरह बनो जो अपने मसलने वाले के हाथ में भी खुशबू देती हैं। वक्त और दौलत दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है
تو अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट को सजा लो। यकीन करो आपका यह तोहफा दूसरों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। हथौड़े के आखिरी बार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पहले बार बेकार थी। हकीकत बस यह है कि कामयाबी मुसलसल कोशिश का नतीजा है। या अल्लाह पाक तू मुसलसल असबाब है, बेहतरीन सबब बनाने वाला है। या रब्बुल आलमीन हमें वही रास्ते समझाना जो बेहतर हों और जिनकी तकमील हो और खैर से भरपूर हूँ। या इलाही हमारे कामों को अधूरा न छोड़ना, अपने कुन से मुकम्मल फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, मैंने घर में कभी चिराग नहीं जलाया। किसी ने पूछा क्या वजह रही? उन्होंने फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी चिराग की क्या जरूरत। एहसास कहने को तो छोटा लफ्ज है, लेकिन अहमियत के लिहाज से बहुत बड़ा खजाना है। रिश्तों को तोड़ने और जोड़ने में इसी का बड़ा हाथ होता है। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों की मंसूबा बंदी से कहीं ज्यादा बेहतर है। खून के रिश्ते जैसे भी हों, उन्हें हर हाल में इंसान अपनी आखिरी सांस तक निभाता है, चाहे खुशी से निभाए या मजबूरी से। मुंह बोले रिश्ते सिर्फ अल्फाज तक महदूद होते हैं। हम उनकी जरा सी गलती पर उन्हें हमेशा के लिए अजनबी कर देते हैं। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखते हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फौरन तौबा कर ले वो इंसान है। इतनी लंबी रातों के बावजूद अगर फजर की नमाज नसीब नहीं होती तो यह अल्लाह पाक से ताल्लुकात खराब होने की निशानी है। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का सच्चा और पक्का नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंसान का आगाज नुतफा जो एक बदबूदार पानी है और एक ताम एक बुसीदा जिस्म है। यह बात अगर इंसान अपने दिल में नक्श कर ली तो वो कभी भी अपनी औकातें फरामोश नहीं करता। जो शख्स अल्लाह पाक के बंदों के लिए खैर का बाइस बनता है, अल्लाह पाक उसकी नस्लों में खैर मुंतकिल फरमा देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी को जरूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि जरूरत फकीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश बादशाह की भी पूरी नहीं होती। भाई एक ऐसा मजबूत सहारा है जो जरूरत के वक्त हमेशा आपके पास होता है और आपको कभी गिरने नहीं देता। भाई परेशानी के वक्त में हिम्मत और मुसीबत के वक्त में साथ देने वाले होते हैं। बेहतरीन भाई वो है जो भाई को ईमानदारी से सच बोलने और अच्छे काम करने का मशवरा दें। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है। यह बात सिर्फ अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि वो बुरे हैं। इसका मतलब यह है कि वो भी इंसान हैं। महज खुशियाँ भी हमारे लिए आजमाइश होती हैं कि हम उस पाक परवरदिगार का कितना शुक्र अदा करते हैं, कितने एहसानमंद हैं हम उसके। किसी भी तरह की परेशानी, गम या दुख भी तो हमारे लिए आजमाइश ही होती हैं। बहुत बड़ी आजमाइश होती हैं जिनसे हमारा सब्र आजमाया जाता है कि आखिर हम अगर खुशियों में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं तो क्या परेशानियों में अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं, उसकी सब्र की तलन याद करते हैं। अल्लाह पाक इस आजमाइश के जरिए हमारे सब्र के पैमाने को आजमाता है, क्योंकि अल्लाह पाक के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपका दिल रास्ते पर चलते चलते डगमगा जाए तो फिर अल्लाह पाक इन आजमाइश को हमारे ऊपर डाल देता है कि हम उसकी रजा में राजी भी हैं या नहीं, हम उस रास्ते पर चलने के लायक भी हैं या नहीं। इस्लाम में क्या का जवाब मौजूद है, लेकिन किसी क्यों का जवाब नहीं। बस जो हुक्म हो गया सो हो गया, उस पर अमल करना हमारा अवलीन फर्ज है। हमें अल्लाह पाक के बताए गए रास्तों पर ही चलना चाहिए। जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें अपनी नहीं
मनवानी चाहिए, सिर्फ उस परवरदिगार की सुननी है, उसकी रजा में राजी होना है, हर हाल में सब्र और शुक्र का दामन थामे रखना है। बेशक अल्लाह पाक आसानियां पैदा करने वाला है। नमाज हम पर बोझ नहीं है। नमाज तो एक ऐसी इबादत है कि जब अल्लाह पाक के बंदे दुनियावी काम की थकावट महसूस करने लग जाते हैं तो फिर उनके कानों में अल्लाह अकबर की आवाजों की गूंज आना शुरू होती है। अल्लाह पाक नमाज के जरिए अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है। दुनियावी कामों से एक वक़्फ़ के तौर पर उन्हें नमाज के जरिए पैगाम भेजता है, अपने आप से मिलने बुलाता है कि आओ मेरे बंदो, उतार दो अपना दुनियावी बोझ, ला कर दो मेरे सुपर्द अपनी सारी थकन, ला कर दो मेरे हवाले अपनी सारी दुनियावी मामलात। कितना प्यारा सौदा है, यह सिर्फ चंद सजदों के जरिए हमें सुकून कल बख्श जाता है। को वास्ता होकर भी तुम्हें सुनता है और एक तुम हो कि फर्ज होने के बावजूद उसकी पुकार का जवाब नहीं देते। कभी उसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग फीके लगने लगेंगे। कभी उसको सुनकर तो देखो, कायनात की सारी आवाजें बेमायने लगने लगेंगी। वो जिसको चाहता है अपनी जानिब मोड़ लेता है, चुपचाप, और किसी को खबर भी नहीं होती। बस फिर वो एक हुक्म देता है और कायनात की सारी ताकतें मुतहद हो जाती हैं। कुल उसके घर तवाफ करने लगता है और सारी बातें फयकुन पर खत्म हो जाती हैं। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह पाक बहुत याद आता है। सब्र करो और यकीन रखो, मायूस दिलों के लिए मोजिज़े नहीं होते। अपने दर्द को अल्लाह पाक से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और रब जाने, वो अपने एक हुक्म से हर वो शय बदल देता है जिसके लिए दिल मुतमईन नहीं होता। मैंने अधूरी तमन्नाओं का हल सजदों में पाया है। तहज्जुद नाम है उस सुकून का जिसमें मेरे अल्लाह पाक से तवील गुफ्तगू होती है। एक वही तो है जो तुमसे बेजार नहीं होता, वो तुम्हें सुनता है और बहुत गौर से सुनता है। अल्लाह पाक अपने बंदे की तड़प कभी भी जाया नहीं होने देता। नदामत भरा एक आंसू, और रब आपकी उम्मीद कभी मत छोड़ना। कमजोर तुम हो, तुम्हारा अल्लाह पाक नहीं। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है उस वक्त भी अल्लाह पाक हमारे साथ होता है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।